Okay, so we are continuing chapter number 14 from where we have left yesterday in our previous class. So we were discussing the basic fluvial concepts, and we discussed about the drainage divides, drainage basins, about sheet flow, and the formation of rills and gullies. So building upon that, we will move on to our next topic, which is internal drainage. So every drainage system, like we can say 90% of the drainage system or the river system or any fluvial system, they end up into ocean. Either like we can say oceans or into any sea, like if we talk about Indus River, its fluvial system is ending at Arabian Sea, which connects to Indian Ocean. Then if we talk about the Ganges River of India, it ends into the Bay of Bengal, from where again it connects to the Indian Ocean. Then yesterday when we were discussing Congo River, so that Congo River, or even let's talk about the Amazon River, it ends up in the Atlantic Ocean. The Amazon River, Congo River also ends up in the Atlantic Ocean in different seas. But there are some rivers, river system or some fluvial system which do not end up in a river, in a sea, sorry. So those fluvial systems or those rivers are said to have internal drainage. ये वो रिवर्स होते हैं जिसमें इंटरनल ड्रेनेज होता है. दैट मीन्स कि वो किसी समंदर पे या ओशन में जाकर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ज़मीन में ही कहीं ख़त्म हो जाता है या फिर किसी दूसरी लेक में. So those are said to have internal drainage, right? The water leaves the drainage basin by means of evaporation of subsurface gravitational flow. ये normally जो dry areas होते हैं उनके अंदर ये phenomenon पाया जाता है कि एक fluvial system में internal drainage होगा. Means वो properly एक sea पे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि पानी या तो evaporate हो जाएगा उस river system का, या फिर वो सबमर्ज हो जाएगा, यानी इन परकुलेट कर जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा इनटू द सॉइल. तो दैट इज इंटरनल ड्रेनेज. और इसकी एग्जांपल वी हैव द हम्बोल्ट रिवर इन यूएसए. हम्बोल्ट रिवर भी अपने सिंक में, यानी एक ऐसा पॉइंट आता है कि अचानक से वो रिवर ख़त्म हो जाता है, और वो जगह होती है जहाँ पे पानी में दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं, एवेपोरेशन एंड सीपेज. ज़मीन के अंदर भी जज़्ब होता है पानी और एवेपोरेट भी हो जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से. तो उस रिवर को इतना मौका नहीं मिलता कि वो किसी डेल्टा में जा सके या किसी समंदर से जाके मिल सके. सो देन डेड सी इन द मिडल ईस्ट, डेड सी फेमस है अपने हाई लेवल ऑफ सैलिनिटी की वजह से, कि इतनी ज़्यादा उसमें सैलिनिटी है कि थिंग्स डू नॉट सिंक इन दैट सी. और उसके अलावा एरल सी और कैस्पियन सी, ये एरल सी और कैस्पियन सी दो लैंड लॉक्ड सीज़ हैं, ऐसे समंदर हैं जिसके चारों तरफ ज़मीन है, किसी ओशन से उनका कनेक्शन नहीं है. सो उसके अराउंड इन रिवर्स के, इन सीज़ के अराउंड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इंटरनल ड्रेनेज पाई जाती है. Okay, then we have ड्रेनेज डेंसिटी एंड ड्रेनेज पैटर्न्स. कल हमने बात की थी ड्रेनेज डिस्चार्ज की और ड्रेनेज बेसिन की, तो ये उसी से रिलेटेड ही है. लाइक मोस्टली इट्स रिलेटेड टू द ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्या था? एक ऐसा एरिया जो एक रिवर का कैचमेंट एरिया है, यानी एक रिवर जहाँ तक अपना पानी सप्लाई करता है, वो एरिया ड्रेनेज बेसिन कहलाता है. और उसकी जो डेंसिटी है, दैट ड्रेनेज डेंसिटी is actually
the length of the stream compared to the area of the basin, कि streams की कितनी length है और उस drainage basin का area कितना है. So that is the drainage density, the ratio of length of streams and the area of the basin is called as drainage density. So the longer the length, the greater will be the density. So this is drainage density, mass per unit volume का density concept यहाँ पर भी apply हो रहा है कि कितनी length है और कितना area है. The more length, the smaller area, more density. So this is the thing. And yeah, then we have the drainage pattern. Drainage pattern is simply the shape of the drainage basin and the arrangement of streams. The shape and the arrangement कि किस type का area है और उस area के अंदर streams का pattern या streams की arrangement क्या है. That is the drainage pattern. And we have 7 basic types of drainage patterns. And what are the factors which define a drainage pattern? So we can say it's the drainage pattern depends upon the steepness of the area. There the points are written here, right? The steepness, किस तरह का slope है, पूरे ओवरऑल बेसन का जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है. एंड देन द रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स, क्योंकि जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पर स्ट्रीम फॉर्म होगी और जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ स्ट्रीम फॉर्म नहीं होगी. इन अदर वर्ड्स दूसरी सिचुएशन क्या है, रेजिस्टेंस कम होगी तो स्ट्रीम की डेप्थ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी रॉक्स की तो स्ट्रीम की डेप्थ कम होगी. ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने रिवर बेड का या बेस लेवल की बात हमने की थी. सो तीसरा फैक्टर जो ड्रेनेज पैटर्न को डिफाइन करता है दैट इज़ द क्लाइमेट फैक्टर, कि किस टाइप का क्लाइमेट है, रेनी है, ड्राई है या मॉडरेट है. सो दैट ऑल्सो डिफाइंस द ड्रेनेज पैटर्न. And then hydrology, variable hydrology, we can say the distribution of different factors, the distribution of the rivers, and again the shape of that area and water salinity से. लेकिन क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न में हमारे पास फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सैलिनिटी का तो इतना रोल नहीं होगा, बट वी कैन से कि सेडिमेंट कंटेंट कितना है, कितना ज़्यादा उसमें पानी मिट्टी वाला है या साफ पानी है. सो ये भी हाइड्रोलॉजी के फैक्टर में आ जाएगा. रिलीफ ऑफ लैंड, दैट इज़ हाइट ऑफ लैंड अगेन. Then the structural controls imposed by the underlying rocks के again ये भी एक resistance का factor है कि underlying rocks में either like we have seen the role of Pluton and the things. So that factor. So these are the things which define a drainage pattern. इन चीज़ों की बेस पर एक drainage basin का एक ड्रेनेज बेसिन के अंदर स्ट्रीम्स की क्या अरेंजमेंट है, क्या शेप वो बना रहा है, क्या फॉर्मेशन है, वो शेप आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा. स्टीपनेस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, हाइड्रोलॉजी के. तो दीज आर लाइक टू वे प्रोसेस. आप इन फैक्टर्स की वजह से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पैटर्न होगा और पैटर्न देख के यू कैन प्रिडिक्ट कि व्हाट माइट बी द hydrology, the relief, the steepness, and the rock resistance. Okay, so let's have a look at some of the common drainage patterns. The most common one is the one which you have seen here in this picture. Where is it? Yeah, this one. This is the most common one. It looks like a tree.
And tree in Greek language is it can be called as a dendron. So दरख्त की तरह का फॉर्मेशन है, और ग्रीक में डेंड्रॉन दरख्त को कहते हैं. दैट्स व्हाई द नेम इज डेंड्रिटिक ड्रेनेज. द फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रेनेज is dendritic pattern. So here you see this is dendritic, which is like a tree जिसमें main branch है, और वो the main stream is in the center, और उसके बाद वो tree branches की तरह spread across spread out हुई भी होती हैं. एंड हर ड्रेनेज पैटर्न के अंदर सारी छोटी स्ट्रीम्स अल्टीमेटली जाके मिलती हैं मेन स्ट्रीम के अंदर. सो दिस इज डेंड्रिटिक ट्री लाइक डेंड्रॉन. और सेकंड है द ट्रेलिस पैटर्न. सो ये पैटर्न इफ यू कैन सी, यहाँ पर पैरेलल स्ट्रीम्स चल रही हैं, लाइक दिस वन ओवर हियर जो स्लांटिंग जा रही हैं. दिस इज one main stream, then we have another main stream, then we have the third one. और ये main streams इसके अंदर ये साथ साथ में sub streams, or we can say the branches of the main stream है. So this type of drainage pattern is found in folded landscape या folded topography, जहाँ पे होगी ज़मीन के अंदर folds होंगे, तो फिर ये फॉर्मेशन बनेगी. लाइक वी कैन से ये जो मेन स्ट्रीम यहाँ पर, इफ यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ माय पॉइंटर हियर, लेट मी मेक इट अ बिट बिगर. ओके, सो हियर दिस पार्ट, ये जो खाली वाला एरिया है जहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं है, लाइक वी कैन से दीज आर काइंड ऑफ अ सेंटीपीड, एक मकोड़ा जैसे है, उसी तरह का एक इसका स्ट्रक्चर है. सो बीच का जो एरिया जो खाली है, जहाँ पर कोई स्ट्रीम कनेक्टिविटी के साथ नहीं है, दिस इज़ द हाईएस्ट एलिवेशन एरिया. और जहाँ पर ये स्ट्रीम है, दिस इज़ द लोअर पॉइंट, द लोएस्ट एलिवेशन. देन अगेन जहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है वो हाईएस्ट एलिवेशन है. तो इसका मतलब है ये बहुत छोटे एरिया पर हाई एलिवेशन आ रहा है. यहाँ पर जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, यहाँ पर हाई एलिवेशन, फिर थोड़े टाइम के बाद, मतलब थोड़ी सी जगह के बाद ही लो एलिवेशन आ गई. एंड हाउ डू वी नो दैट दिस इज लो एलिवेशन? क्योंकि हमने बताया आपको कि वेयर एवर वी हैव अ मेन स्ट्रीम मस्ट बी इन द लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट. तो मेन स्ट्रीम हमेशा लो एलिवेशन पे होगी. सो दिस इज लो एलिवेशन. देन अगेन यहाँ पर जहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स स्टार्ट हो रही हैं, इसका मतलब है ये वो जगह है जहाँ पे शीट फ्लो और जहाँ पे रिल्स की फॉर्मेशन होती है. तो शीट फ्लो और रिल की फॉर्मेशन हमेशा हाई एलिवेशन की तरफ होगी. सो दिस इज हाई एलिवेशन, दिस इज अगेन लो एलिवेशन, दिस इज हाई, दिस इज लो. सो हाई और लो ये सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन की फॉर्मेशन है, और सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन बनते हैं फोल्डेड लैंडस्केप. सो द ट्रेलिस पैटर्न इज फाउंड इन फोल्डेड लैंडस्केप इन फोल्डेड टोपोग्राफी. अच्छा, इसमें एक फीचर इन्होंने इंसेट के अंदर बताया हुआ है कैप्चर के नाम से. सो कैप्चर is that part in a trellis landscape where the drainage divide. जाहिर है ज़मीन पे आपने अब तक पढ़ा कि लैंड डेन्यूडेशन प्रोसेस है, कंटिन्यूस वेदरिंग हो रही है. तो जहाँ उन फोल्ड्स के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रॉक्स लेस रेजिस्टेंट होते हैं और रॉक्स वेदर आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दो स्ट्रीम्स का आपस में कनेक्शन बन जाता है फोल्ड के अक्रॉस. लाइक दिस पार्ट जहाँ पर ये माउस मेरा मूव कर रहा है, ये फोल्ड का एंटीक्लाइन पार्ट है, टॉप पार्ट है. ठीक है, ये टॉप पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, इरोड आउट हो गया. इरोड होने की वजह से, वेदर होने की वजह से, जो ये स्ट्रीम थी नीचे वाली, इस स्ट्रीम का ऊपर वाली स्ट्रीम से कनेक्शन बन गया. सो दिस कनेक्शन इज द कैप्चर. ओके, सो दिस इज द ट्रेलिस पैटर्न. ये फोल्डेड टोपोग्राफी के अंदर है. देन द थर्ड वन इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न.
and a radial, circular. So here, if you see again, this type of drainage pattern is found where there is a dome or a hill in the center. यहाँ पर center वाला part, this part over here, इस center part में कोई stream नहीं है और यहाँ से streams start हो रही हैं छोटी छोटी. That means this is the highest point. This is the highest elevation point over here. और यहाँ से शीट फ्लो, रिल्स और गली फॉर्म हो रही है. तो जब ये हाईएस्ट एलिवेशन है और सारी स्ट्रीम्स बाहर की तरफ हर डायरेक्शन में निकल रही हैं, तो इसका मतलब है ये एक डोम टाइप स्ट्रक्चर है. सो द रेडियल पैटर्न इज फाउंड वेयर देयर इज अ dome in the middle of a landscape or a topography. Okay, here. Radial drainage pattern results when the streams flow off a central peak. Okay, so इन्होंने एग्जाम्पल दी है वॉल्केनिक माउंटेन की कि दिस इज फाउंड इन वॉल्केनिक माउंटेन्स, और इसके अलावा हिल्स में भी हो सकता है. और हमारी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बोटानिकल गार्डन में जो हिल है वहाँ पर भी अगर कोई ड्रेनेज पैटर्न बारिश के सीज़न में बनेगा तो वो रेडियल पैटर्न बनेगा. बट ऑफ कोर्स डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती रिल्स और गलीज की वहाँ पर, तो दे डिसअपियर as soon as the rain is over. Okay, then parallel drainage pattern here. You see these streams are close to each other and they are kind of parallel to each other. तो ये वो landscape है जहाँ पर slope steep हो. So the parallel drainage pattern is found in steep slopes. स्लोप के स्टीप होने की वजह से स्ट्रीम्स को फैलने का मौका नहीं मिलता, बल्कि वो डाउन स्लोप स्ट्रीम्स बहना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से लाइनें काफ़ी पैरेलल और करीब करीब आपको दिखती हैं. सो दिस इज पैरेलल. This is the drainage pattern which is found on steep slopes. All right, then the next one is rectangular drainage pattern, and this type of drainage pattern here you can see, this type of drainage pattern is found in the areas where there are cracks, fractures on the ground. ग्राउंड में फ्रैक्चर्स और क्रैक्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रीम्स कहीं कहीं पे 90 डिग्री पर बेंड हो रही होती हैं. 90 डिग्रीज बेंड इन द स्ट्रीम्स, एंड दिस straight line or the 90 degree distribution suggest a 90 degree angle suggests the fractures and faults in that landscape. So this is rectangular pattern, and here we can see found by faulted and jointed landscapes. आमतौर पे फॉल्ट्स में थोड़े से एरिया पर स्ट्रेट लाइन फॉल्ट होता है, पर उनका जो परपेंडिकुलर क्रैक होता है दैट normally nears to 90 degree angle. So rectangular pattern में you will find right angled turns. वैसे अगर देखा जाए तो it's more or less similar to the dendritic one, लेकिन dendritic में tree like pattern है, सब में acute angles बन रहे होते हैं सारे streams के बीच में, but here in the rectangular ones आपको वहाँ पे right angled bends मिलेंगे, कुछ ना कुछ rectangular form में या right angle की form में. All right, then the next one is annular pattern. So again, you see radial and annular. The central part is empty and the smaller streams are in the center. तो जब छोटी वाली streams center में होती हैं, तो that means कि center से ये drainage pattern start हो रहा है, और जहाँ से drainage pattern start होता है means कि that is the highest elevation point. So this annular pattern is formed in a dome-like area where there is a dome. But क्या difference है radial और annular में कि annular pattern is found in
a circular dome with steps on it. यहाँ पर एक स्टेप आया, सीढ़ियाँ टाइप, लाइक सेंटर में डोम है और उसकी हाइट ज़रा सी कम हुई, उसके बाद उसमें एक छोटा सा फ्लैट एरिया होगा, फिर वो नीचे जाएगा। सो दैट स्टेप लाइक थिंग, उसमें नेचुरल स्टेप्स बने हुए होते हैं एन्युलर पैटर्न के अंदर। सो those are the areas which have the annular pattern. एक ऐसा लैंडस्केप जहाँ पर पहाड़ी पर स्लोप बिल्कुल सीधा स्लोप नहीं होगा, बल्कि स्लोप में इफ़ यू रिमेंबर द अनड्यूलेटिंग स्लोप, हाँ, आई वंडर इफ़ यू हैव स्टडीड अनड्यूलेटिंग स्लोप और नॉट, जिसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की फॉर्म में स्लोप बना होगा, लाइक सीढ़ियों की तरह। तो उस लैंडस्केप पर हमारे पास एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न होगा। And then the last drainage pattern is the deranged drainage pattern, a drainage pattern which does not have any proper shape. कोई proper formation नहीं होती है, और and why does this happen? It's because of the disruptive certain surface patterns. So this is annular pattern provided by the structural dome. So these are the 7 basic drainage patterns. Main thing is that you need to understand the concept के जहाँ पर stream ख़त्म हो जाए। दिखने में लगता है, हमें यूँ लगता है कि यहाँ पे स्ट्रीम ख़त्म हो रही है इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर। इनफैक्ट ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्ट्रीम्स स्टार्ट होती हैं, और स्ट्रीम का स्टार्टिंग पॉइंट, छोटी छोटी स्ट्रीम्स का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हाई एलिवेशन में होगा, और जहाँ जैसे जैसे स्ट्रीम थिक होती जाएगी या उसमें ज़्यादा स्ट्रीम्स आके मिल रही होंगी तो वो लो एलिवेशन होगी। And wherever there is no connection between the streams, that will be the drainage divide. बाउंड्री होगी दो ड्रेनेज पैटर्न की। तो इस डेंड्रिटिक इमेज के अंदर वी कैन सी 3 ड्रेनेज बेसिन्स। ये एक यहाँ से जहाँ से मेरा पॉइंटर जा रहा है, दिस वन, एंड देन दिस पर्टिकुलर वन जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है। मींस कनेक्शन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हाई एलिवेशन एरिया आ गया है और ड्रेनेज डिवाइड है यहाँ पर, राइट। ये this was about the drainage patterns. Then fluvial processes and landforms is our next topic. So we have already discussed this discharge thing earlier in the chapter, in fact in the previous lecture. So discharge is the volume of flow, volume of water per unit of time in a given area. So there's the formula or the expression to calculate the discharge, Q equals WdV. So discharge can be found by the width of the channel, W is the width, then D is the depth, and V is the stream velocity. So these are the 3 things which define the discharge of a stream or a river. So the unit is cubic meters per second or cubic feet per second. It depends upon the number system used by the country where the river is present or where it is studied. Okay, so this was the stream discharge. Then we have
dam controlled discharge and sedimentary redistribution. Okay, so in the areas in the rivers where we have dams, हर उस रिवर पे जहाँ पे डैम होगा तो वहाँ पर डिस्चार्ज को कंट्रोल किया जाता है. And with that the sediments are redistributed kind of, क्योंकि जब डैम बनाया जाता है उसके साथ ही उसका रेजरवायर होता है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, और जब पानी वहाँ पे स्टोर है तो दैट वाटर इज़ यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, और फिर जो सरप्लस वाटर होता है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डैम्स के जो बंद होते हैं या दरवाजे होते हैं तो दोज डोर्स ऑफ द डैम्स आर ओपनड एंड देन द डिस्चार्ज इज कंट्रोल्ड. अदरवाइज जहाँ पे डैम नहीं है वहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज है, मतलब नेचुरल डिस्चार्ज. Okay, then we have exotic streams. So exotic means something which has come from some other area, दूसरी दुनिया का आया हुआ या दूसरे मुल्क का. So these are the streams which flow in in a very dry area. कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर स्ट्रीम्स या रिवर का तसव्वुर ना आए, और वहाँ पे अगर रिवर फ्लो करे तो यूँ लगता है कि कहीं से कोई मिसफिट चीज़ आ गई है उस जगह पे. तो इस तरह की स्ट्रीम्स को एग्जॉटिक स्ट्रीम कहते हैं. और रिवर नाइल is an example of exotic stream क्योंकि you all know that Africa, the northern part of Africa has the world's biggest desert, और कुछ ड्राई कंट्रीज़ में नाइल फ्लो करता है. इट फ्लोज थ्रू 11 कंट्रीज़ रिवर नाइल, और उन 11 कंट्रीज़ में से कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे लोकेलिटीज़ और सम देयर आर सम एरियाज़ वेयर नाइल लुक्स क्वाइट मिसफिट कि एक डेजर्ट में एक रिवर फ्लो कर रहा है. सो इस वजह से ये टर्म इन्होंने दी कि एग्जॉटिक स्ट्रीम, परदेसी स्ट्रीम या ऐसी चीज़ जो वहाँ पे नहीं होती. सो इट मीन्स फॉरेन ओरिजिन. और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी है द कोलोराडो रिवर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये भी एक एग्जॉटिक स्ट्रीम की एग्जांपल है कि किस तरह से एक रिवर एक ऐसे लैंडस्केप पे फ्लो करे जहाँ पे रिवर सूट नहीं करता. तो डेजर्ट्स के अंदर, ड्राई एरियाज के अंदर द रिवर्स डोंट सूट. सो दोज आर एग्जॉटिक स्ट्रीम्स. All right, then the next topic is stream erosion and transportation. So erosion, removal, transportation, movement after the removal, and it is done by stream. अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे stream का word use हो रहा है. इसको river erosion भी कह सकते हैं, but again they are using the word stream because it can be broad, it can be narrow, that water body. इसलिए stream की terminology यहाँ पर है. Okay, so the action of a river, action of a stream is called as the hydraulic action. जिस तरह आपने hydraulic brakes सुने होंगे, those brakes which have liquid or which have water in them. So hydraulic action, the work of the water, work of flowing water is the hydraulic action. Or what water does on the rock, abrasion. Abrasion is the grinding and carving of rocks by the water. और उसका एक्शन इन्होंने यहाँ कंपेयर किया है लिक्विड सैंड पेपर से. इट लुक्स लाइक अ सैंड पेपर, एक रेगमाल जो लिक्विड मोड में है. सो व्हेन हाइड्रोलिक एक्शन टेक्स प्लेस, जब पानी अपना काम करता हुआ गुजरता है रॉक्स पर, तो वो हाइड्रोलिक एक्शन है. और हाइड्रोलिक एक्शन के रिजल्ट में क्या होता है? एब्रेशन. एब्रेशन क्या चीज़ है? ग्राइंडिंग एंड कार्विंग. पहले वो रॉक्स को ग्राइंड करता है, काइंड ऑफ घिसना. देन ग्राइंड करने के बाद उसकी एक नई शक्ल आती है, तो दैट इज द कार्विंग. और द एब्रेशन एंड द हाइड्रोलिक एक्शन विल बी मैक्सिमम at upstream.
अपस्ट्रीम हायर एलिवेशन पे जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है, या पहाड़ी इलाकों में या हिली एरियाज में हाइड्रोलिक एक्शन एंड एब्रेशंस आर मैक्सिमम। और जैसे जैसे रिवर प्लेन एरिया में फ्लो करने लग जाता है, जहाँ पे टेरेन रिलेटिवली सीधी हो जाती है, ज़मीन प्लेन एरिया जब स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर हाइड्रोलिक एक्शन इज स्लोड डाउन। So then we have a lot other things which could not be completed in this lesson. So we will continue the remaining ones in the next lesson.